They don't know where their next morsel of food will come from. They are constantly worrying how to move, even to get a glass of water. In a world so uneven, will these rough gems ever be polished? Will they ever have a good life? Yes, they will. Ratnanidhi Charitable Trust is working hard to make a difference to countless number of lives, from eradicating malnutrition to making life worth living. Their happiness is the mission of Ratnanidhi Charitable Trust. Most of these beautiful children had to work hard day in and day out just to fill their famished stomach. With food for education, food for saving and food for survival projects, Ratnanidhi has served millions of meals to these children. Now, their dream is not to find the next meal, but a brighter future. It's difficult to imagine life without the freedom to move on our own. With this thought, Ratnanidhi works on various mobility projects like Jaipur Foot, calipers, crutches, tricycles, wheelchairs, hearing aids and much more. More than 2 lakh appliances have been distributed to enhance the mobility of differently abled people, so that when they have to walk, they don't have to depend on someone else's feet. When disaster strikes, it not only strikes our lands, but also our hearts, minds and souls. And whenever Mother Nature displayed her ire on them, Ratnanidhi made every possible effort to extend their hands to help them carry on with their lives. The foundation has been at the forefront in providing emergency aid at various places since 2001. For life should always go on, no matter what. The world is taking up arms to fight the evil schemes of terrorism, and so has Ratnanidhi, but in a different way. With education for terror victims, the foundation has helped terror victim kids complete their education and achieve their aspirations. When knowledge empowers these young minds will empower the world. But when did Ratnanidhi start and how? Let us see now. The story began 25 years ago in 1991, when Mr. Mahendra Mehta was moved by a little kid who was helplessly wandering on a railway platform in Mumbai. He started Ratnanidhi Charitable Trust with a vision to tackle the problems of poverty in Mumbai, especially amongst children, and bring them to mainstream. Soon, its humble origin as a family institution crossed the geographical boundaries of Mumbai and then India. In 1992, the foundation started Garment Distribution Project. Giving a good pair of clothes to someone needy is as good as dressing them with self-respect. With this objective, Ratnanidhi has been distributing usable garments to the poorest of the poor children, women and men of all ages. A special pickup system ensures that usable garments are received from across India. The garments are then sorted as per age and gender, repaired if required, ironed, folded and packed, making it as good as new. Now with their clothes, they wear a smile too. Ratnanidhi soon expanded its wings with projects like book donation and vocational training.
Knowledge is power, and Ratnanidhi strongly believes in empowering the impressionable minds, which is why they have donated books to school children in more than 2,000 schools and colleges in Mumbai and India. It has also donated more than 3,000 Braille books for visually impaired ones. It's a good social service. Many kids from different schools who do not get such books, they will be able to read these books, and it will be a great opportunity for them. Today, these books are helping them start a new chapter of their life. Ratnanidhi continued its endeavour to spread the power of knowledge by providing skill-based training. They have provided vocational training for home management, domestic help, small-scale manufacturing, drivers, security guards, electricians and mechanics. Basic computer training skills and spoken English training are the new additions to their vocational training projects started in 2015. Over 60,000 street children have learnt the skills for self-sustenance, but there was still a long way to go. In coming years, Ratnanidhi Charitable Trust grew rapidly and started wide range of activities and also carried out its flagship projects on a regular basis, thus reaching out to more number of people and passing more happiness every day. In 2007, Ratnanidhi also started Hospital Equipment Project. From hospital beds and dental chairs to wheelchair and physiotherapy machines, Ratnanidhi has taken care to import the finest of machinery from USA and Germany and donated them to hospitals and institutions doing humanitarian work. Because we believe that saving even one life is like saving the whole mankind. Ratnanidhi further continues to work towards a better future where each child can look forward to a day free of hunger, suffering, abuse and poverty. Now let us see some upcoming activities and future plans of Ratnanidhi Charitable Trust. Working tirelessly to improve lives, Ratnanidhi sets its focus on 5 important plans. They are collaborating with IIT Mumbai to develop a low-cost artificial limb using robotics, 3D printing and handheld scanner using smartphones. Mumbai Municipality has given Ratnanidhi a 1,400 square feet building next to their Jaipur Food Centre where construction work has already begun. Once completed, it will provide physiotherapy services to the needy beneficiaries. Ratnanidhi has started literacy project in rural Maharashtra by providing educational books to school and college libraries in Maharashtra. Ratnanidhi Charitable Trust is tying up with many esteemed corporate organizations for better outreach and execution of its activities. The foundation is raising awareness about its various causes and reaching more number of people by participating in events like Standard Chartered Mumbai Marathon and also joining hands with taxi and auto unions. Ratnanidhi has also started projects for partially blind students by providing them with Google Nexus tablets, which has embedded software developed by Language Training Institute of Carnegie Mellon University. It can read aloud regional languages, Indian newspapers, and even websites. With such determination, Ratnanidhi has impacted several lives positively. This is Yadgiri's story. He wants to be an engineer. His mother works very hard as a maid to sustain him and his siblings. Yadgiri also does some odd jobs to earn extra income, but there is no money left for his education after everyday expenses. So he attends a free school, Sundatta High School. There, he eagerly waits for his 10 o'clock recess to have his first hot meal of the day sent by Ratnanidhi. The food keeps him attentive in class for the rest of the day and helps him save a lot of money for his future needs. This is the story of Nandini, beneficiary of educational sponsorship for terror victims. गेट ऑफ इंडिया के पास हो गए थे, मतलब भाड़ा ले 1:05 पे बम ब्लास्ट हो गया।
बहुत हम लोगों को सुविधा मिला और बहुत मैम हमारा हेल्प की है। शायद कि इतना अगर अपना माँ बाप भी होते इतना हेल्प नहीं करते जितना हम लोग अपनी मम्मी से हेल्प मिली। This is Abdul, beneficiary of Jaipur Foot that changed his life. बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि मतलब यहाँ पे इतना अच्छा बना के दिया है, मतलब इतनी जल्दी बना के दिया है। मतलब अब इसके स्कूल जाने में कोई दिक्कत नहीं है, पहले गोद में ले जाना पड़ता था, अभी चल के जाएगा। The world might not be perfect, but there is always more room to make it better. We thank each one of you for being a part of this beautiful journey. You have helped us transform impossibilities into possibilities. Let's give these kids a reason to live that can overpower a billion reasons not to. Ratnanidhi Charitable Trust. रिस्पेक्टेड टाटा सर, रिस्पेक्टेड मेहता सर और मैम और बीवीजी चेयरमैन श्री हनुमंत राय गायकवाड़ जी और यहाँ पर उपस्थित आप सभी लोग को मेरा सप्रेम नमस्कार। सर, ये रियली थैंक यू सो मच। मेहता जी, मेरे पास वर्ड नहीं है कि ही इज़ माई आइडियल। स्वामी विवेकानंद, उसके बाद आप। और मैं जितनी बार, आज करीब 3-4 बार मैं मिल चुकी हूँ, लेकिन जितनी बार मैं मिलती हूँ आपसे तब मेरी आंखों में आंसू आ जाता है। मेरे पास शब्द मैं अच्छा बोल सकती हूँ, लेकिन आप सामने बैठे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। सर, आई एम नॉट अ बिग स्पीकर। मैं एक माउंटेनियर हूँ, एक प्लेयर हूँ। सिर्फ कुछ नहीं मैं अलग से बोलूँगी, सिर्फ अपने लाइफ का एक एक पल। आज जो रत्नानिधि मुझे मैं मिली थी, बहुत सारे अवार्ड्स मिले, लेकिन जो खुशी आज मुझे मिली है ये मुझे रत्नानिधि की तरफ से मिली है। सर, थैंक यू सो मच सर। एक एक पल का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। 2011 में चलती ट्रेन से मुझे कुछ बदमाशों ने उठाकर बाहर फेंक दिया था, सिर्फ एक गोल्ड चैन के लिए। मेरे गले में एक सोने की चैन थी। मैं लखनऊ से दिल्ली आ रही थी। जनरल कंपार्टमेंट में मैं बैठी थी और 4-5 लोग ट्रेन में चढ़े और पूरे कंपार्टमेंट में लूटपाट शुरू किया। किसी ने मना नहीं किया। मैं नेशनल प्लेयर 7 टाइम वॉलीबॉल की रह चुकी थी और किसी भी प्लेयर से अगर कोई चीज़ प्यार से मांगे वो दे देगा, लेकिन अगर छीन के मांगे वो कभी नहीं देगा। जब उन्होंने मेरे पूरे कंपार्टमेंट में लूटपाट शुरू किया, किसी ने मना नहीं किया। जब मैंने मना किया, उन्होंने 4-5 मिल के उन्होंने ऐसे उठाया, मुझे उठाकर चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। दुर्भाग्य ये था, उसी समय दूसरी ट्रैक से ट्रेन आ रही थी और उसका इंजन निकल गया। मैं डिब्बे में पिंग पोंग की तरह ऐसे टकराई, फिर नीचे गिरी और दोनों ट्रेनें निकल गई। जब मैंने थोड़ी देर बाद उठने की कोशिश की कि मैं उठ जाऊं, तो मैं उठ नहीं पा रही थी। और जब मैंने अपने थाई को उठाकर देखा ऐसे, तो मेरा पैर कट के जीन्स में लटका हुआ था ऐसे, और ब्लड फोर्सफुली निकल रहा था। दूसरे पैर की हड्डियां देखा तो टूट टूट के जीन्स के बाहर निकल चुकी थी। मेरे दोनों एल्बो, ये सब बुरी तरीके से टूट चुका था। मेरी बॉडी की एक एक हड्डियां टूट चुकी थी। बेपनाह दर्द था उस समय। हॉस्पिटल, जब मैं रेलवे ट्रैक पे थी, मेरा ब्रेन कॉन्शियस पूरी तरीके से काम कर रहा था। मैं पटरी के इतने करीब थी कि अगर मैं ऐसे पलटती तो मेरे ऊपर से दोबारा ट्रेन चली जाती। मैंने अपने आप को कंट्रोल करके, छोटे छोटे पत्थर होते हैं ट्रैक पे, दोनों हाथों में पत्थर पकड़ा है और पूरी तरीके से मैं ऐसे लेटी रही और ट्रेन गुजरती, कभी इधर से कभी उधर से। ट्रेन लगातार ट्रेन निकल रही थी। मैं इतने करीब थी पटरी के कि लोग टॉयलेट करते थे तो मेरे साइड में पड़ता था। मेरा एल्बो फ्रैक्चर था, मैं ऐसे साफ भी नहीं कर सकती थी। पूरे टाइम में वहीं पड़ी रही। जब ट्रेन जाती थी तो पूरा वाइब्रेट होता था, हवा भी बहुत तेजी से लगता था।
ट्रेन जब पूरी तरीके से निकल जाती तो शांत सा माहौल हो जाता था, चूहे होते हैं ट्रैक पे, वो जब तक मैं बॉडी मूव कर पा रही थी तब तक तो ठीक था, बाद में बॉडी मूवमेंट मेरे ख़त्म हो चुका था, मैं बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रही, कटे हुए पैर को चूहे आके कुतरते थे। आज भी उस पल को जब मैं सोचती तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बस दिल से यही चीज़ निकलती किसी और के साथ में ऐसा ना हो। फिर भी एक उम्मीद के साथ में मैं चिल्लाती रही कि कोई बचा ले, कोई बचा ले। सुबह हुआ और गांव वालों ने मुझे देखा, उठाकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बरेली ले जाके मुझे एडमिट किया। वहाँ के CMS फार्मासिस्ट डॉक्टर, उन्होंने मुझे ऐसे बेड पे लिटा दिया गया और आपस में बातें कर रहे हैं, हमारे पास एनेस्थीसिया नहीं है, ब्लड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इसका इलाज शुरू करें तो कहाँ से करें। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा के सिर्फ इतना बोला कि उतनी देर मैं रेलवे ट्रैक पे थी, उस दर्द को बर्दाश्त किया, तो अभी तो आप मेरे अच्छे के लिए मेरा पैर काटेंगे, आप बिना एनेस्थीसिया काट दो। बहुत कम सुनने को मिलता है कि एक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट अपना ब्लड दे के किसी पेशेंट को बचाए, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिसकी वजह से मुझ जैसी अरुणिमा भी जिंदा है। वहाँ के फार्मासिस्ट और जो CMS थे, उन्होंने एक एक यूनिट ब्लड दिया और मेरा पैर बिना एनेस्थीसिया काट दिया गया। मैं उस दर्द को तो कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मेरा पैर जब काट दिया गया मुझे साफ साफ पता चल रहा था कि मेरा पैर काटा जा रहा है। बात जब मीडिया में, मेरा परिवार पहुंचा बरेली, बात जब मीडिया में आई कि अरुणिमा नेशनल प्लेयर है, मुझे ट्रीटमेंट अच्छा मिलना शुरू हुआ। वहाँ से किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, फिर स्पोर्ट मिनिस्टर मुझे एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स में एडमिट किया गया। असली कहानी एम्स से शुरू होती है जब मैं हॉस्पिटल के बेड में 20 से 25 दिन बाद, 20-25 2 डेज आफ्टर, जब मैं हॉस्पिटल के बेड में थी एम्स में न्यू दिल्ली, मैं जब न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया, टीवी देखना शुरू किया, हेडलाइन था कि अरुणिमा के पास टिकट नहीं था, TT आने पर अरुणिमा ट्रेन से कूद गई। मैं शॉक थी पूरी तरीके से कि ये क्या है। अभी मैं अपने मन को, अपने दिल को समझाने की कोशिश ही कर रही थी, तब तक नेक्स्ट डे सुबह हेडलाइन दूसरी थी कि अरुणिमा सुसाइड के लिए गई थी। कैन यू इमेजिन, जिस लड़की का, कोई भी हो, एक इंसान का 22 से 23 साल उम्र होने के बाद अगर उसके शरीर का एक अंग कट जाए, पूरी जिंदगी का पता नहीं कि व्हील चेयर है, बैसाखी, क्योंकि मेरे स्पाइन में 3 फ्रैक्चर था, मैं बेड से उठ भी नहीं सकती थी, और बेड से उठ भी नहीं सकता है, मोशन वगैरह सब कुछ पॉट में है। अगर उसके ऊपर सारा कुछ दोषारोपण उसी के ऊपर डाल दिया जाए, इंसान क्या करे उन परिस्थितियों में। लेकिन एक सच्चा साहसी, सच्चा दिलेर इंसान भी वही है जो परिस्थितियों को अपने हक में मोड़ने पे, लाने पर मजबूर कर दे। मैंने हॉस्पिटल के बेड से डिसाइड किया। 2 तरीके होते हैं किसी को समझाने का, सिस्टम से लड़ना आसान नहीं होता है। हॉस्पिटल के बेड से, मैं एक मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, अपनी बातें मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि नहीं, मैं सुसाइड के लिए नहीं गई थी, मैंने टिकट लिया था। CCTV कैमरा लगाने का फ़ायदा हुआ, मुझे प्रूफ किया मैंने कि हाँ मैंने टिकट लिया था, प्रूफ किया मैंने अपने आप को। लेकिन फिर भी मैं सिस्टम से पूरी तरीके से नहीं लड़ पा रही थी। हॉस्पिटल के बेड से मैं सिर्फ उस मनोदशा को आपको समझाना चाहती हूँ कि एक 22 से 23 साल की उम्र की लड़की का, जिसका शरीर का एक अंग कट चुका हो, उसकी क्या मनोदशा होगी या फिर उसके परिवार की क्या मनोदशा होगी। आप भी एक परिवार से हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। मनोदशा पूरी यही लग रहा था, सब कुछ खत्म हो चुका है। मैंने हॉस्पिटल के बेड से डिसाइड किया कि ठीक है, आज आपका दिन है, जितना चाहो बोल लो, कल तो मेरा दिन आने वाला है, मैं प्रूफ कर दूंगी कि मैं क्या हूँ। और तब हॉस्पिटल के बेड से डिसाइड किया था कि नहीं, अब लाइफ का छोटा गेम नहीं, वॉलीबॉल नहीं, लाइफ का सबसे टफ गेम लेना है, एकदम अलग। किसी का पैर कट जाने से, मुझे आज भी CISF सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में मुझे एज ए असिस्टेंट कमांडेंट जॉब ऑफर की, एज ए DSP, लेकिन मैंने जॉब ज्वाइन नहीं की, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे वो 20 बाई 20 के उस लग्जरी ऑफिस, लग्जरी गाड़ी या फिर उसमें नहीं जीना था। मुझे अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस लेके आना था। तब मैंने हॉस्पिटल के बेड से डिसाइड किया, मुझे लाइफ का सबसे टफ गेम लेना, माउंटेनियरिंग। लोग सोचते ही नहीं हैं। तब मैंने हॉस्पिटल के बेड से डिसाइड किया कि मुझे ये करना है। लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, उसको प्रॉपर प्लानिंग, फिर उसको आगे बढ़ाना। मैंने तो सोच लिया कि हाँ, मुझे माउंटेनियरिंग करना है। डोर टू डोर मैं गई थी स्टार्टिंग दौर में, लोग ट्रेनिंग के लिए और स्पॉन्सरशिप के लिए। मुझे लोगों ने पागल और सनकी कहकर भगा दिया था कि जाओ, इग्नोर कर दिया मुझे कि पागल है क्या, तेरा दिमाग खराब हो चुका। कुछ लोगों ने तो फ्रंट से ये भी बोला, क्या है, लंगड़ी हो गई, दिमाग भी खराब हो चुका है। मैं उस मनोदशा को नहीं समझा पाऊंगी ठीक से कि जब लोग मुझे पागल और सनकी बोलते थे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा माइंड था पूरी तरीके से स्ट्रांग हो चुका था अपने गोल के प्रति।
मैंने हॉस्पिटल के बेड से डिसाइड किया मुझे तो करना है चाहे कुछ भी हो जाए। सब ने ना कर दिया था। भाई साहब ने फिर सजेस्ट किया कि मैम बछेंद्री पाल टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की चीफ हैं और उनसे मिलते हैं, शायद वो कुछ करेंगी। मैंने 5 से 6 बार उनको फ़ोन करने की कोशिश की, शायद मेरी बात नहीं हो पा रही थी। लास्ट 7वीं बार जब मेरी बात हुई उनसे, मैंने सिर्फ इतना बोला कि मैम मुझे आपसे मिलना है। तो मैम ने कहा ठीक है, मैं झारखंड में हूँ, तुम आ जाओ। शाम को 4 बजे मैंने डिस्चार्ज लिया एम्स ट्रॉमा सेंटर से। रात को 9:30 बजे मैं रेलवे स्टेशन ट्रेन पकड़ी मैंने। जब मैं हॉस्पिटल से रेलवे स्टेशन जा रही थी, मेरा आर्टिफिशियल पैर ऐसे रॉड जैसा और दूसरे पैर में मेरे रॉड डली है, स्टिचेस लगी हुई थी। जब मैं वहाँ से वहाँ तक चल के जा रही थी तो लोग मुझे अजूबे की नज़र से देख रहे थे। लोगों को ये लग रहा था कि ये क्या, अभी ज़रूरत क्या थी इतना। मुझे लगता है कि जब सही टाइम हो, सही वक्त हो, तभी इंसान को चोट करना चाहिए। मैम बछेंद्री पाल को मैंने फ़ोन में सिर्फ इसलिए नहीं बोला कि मैम मुझे किस लिए मिलना है, क्योंकि मैम ये डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो मैम फ़ोन में ही कह दे अरुणिमा अभी मत आओ, ठीक हो जाना तब आना। लेकिन मैं अपने जख्मों को हरा रख के उस गोल को पाना चाहती थी और इसलिए मैं नेक्स्ट डे रात को 9, 9:30 बजे मैंने ट्रेन पकड़ी। नेक्स्ट डे सुबह मैं झारखंड थी। JRD टाटा स्पोर्ट्स में मैम वहाँ पे रहती, उनके ऑफिस है। जब मैं उनके ऑफिस की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो मैम बछेंद्री पाल दौड़ के मेरे पास आई और बोली अरुणिमा इतना भी जल्दी तुझे क्या था कि तुझे एवरेस्ट, इतनी जल्दी क्या था कि तू इतनी जल्दी भाग के आगे ठीक तो हो जाती। जब मैंने अपना प्रपोजल रखा कि मैम मुझे माउंटेनिंग करना है, एवरेस्ट के लिए ट्राई करना है, उनकी आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने बोला अरुणिमा तूने ऐसी हालात में एवरेस्ट जैसे दुरूह पहाड़ के बारे में सोचा, तूने अपने अंदर तो एवरेस्ट फतह कर लिया, अब तो सिर्फ लोगों के लिए है। मेरे भाई साहब को छोड़कर बाहर का कोई एक और ऐसा शख्स मिला था जिसको थोड़ा यकीन हुआ। लेकिन मैम ने ये भी कहा, मैम बछेंद्री पाल ने ये भी बोला कि ठीक है अरुणिमा तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा, अपने आप को प्रूफ करो कि तुम कर सकती हो। वाकई में कहने और करने में दोनों में बहुत फ़र्क होता है। जब मैं माउंटेन पहुंची हूँ, मेरे राइट लेग की हड्डियाँ जॉइंट नहीं जुड़ी नहीं थी, स्टिचेस निकाल दी गई थी, लेकिन हड्डियाँ जुड़ी पूरी तरीके से नहीं थी। लेफ्ट मेरा आर्टिफिशियल था, लेकिन जब मैं अपने बॉडी का वेट प्रोस्थेटिक लेग पे लेती थी तो मेरे स्टम्प से ब्लड आ जाता था। वहाँ पर भी यही होता था। वहाँ पर भी और लोग जो बाहर से आते थे वो यही बोलते थे कि ये क्या पागलपन है। तब मुझे जब लोग पागल बोलते थे तो मुझे गुस्सा आती थी, बहुत तेज़ी से गुस्सा आती थी। लेकिन सच बताऊं, आज की डेट में जब मुझे कोई पागल बोलता है तो मैं खुश हो जाती हूँ, क्योंकि उस पागलपन का मतलब समझ में मुझे आ गया है। क्योंकि आज मेरा मानना है कि जब आपके गोल के प्रति लोग आपको पागल बोलना शुरू कर दें, उसी दिन आप समझ लीजिए आपका गोल आपके बहुत करीब है। आपको कोई भी नहीं रोक सकता, कितनी भी कोशिश कर लें। इवन आप खुद भी चाहें कि एक बार जब कोई भी गोल आपने अपनी अंतरात्मा से, अपनी इनर पावर से अगर आपने उसको फिक्स किया है, और अगर आप ये चाहें नेक्स्ट टाइम कि आप बदल दें उस गोल को, तो आप बदल नहीं सकते, क्योंकि वो गोल हमारी नसों में दौड़ता है। स्वामी विवेकानंद जी बहुत पहले ही कह चुके हैं कि जो कोई भी गोल जब हमारी नसों में दौड़ता है तो हम उसको बदल नहीं सकते, और उस गोल को हमें अचीव करने को अपने आप खुद हम मजबूर हो जाते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। मैम बछेंद्री पाल टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन में आउटडोर लीडरशिप की, एम्प्लॉयज़ के साथ, टाटा के जितने एम्प्लॉय हो, आउटडोर लीडरशिप की 10 दिन की ट्रेनिंग होती है वहाँ पे। जितने लोग सब नॉर्मल रहते थे वहाँ पर, मेरे साथ ही एक आर्टिफिशियल पैर का साथ में था। मेरे से हर कोई मुझसे पहले निकल जाता था। अगर मैं ईमानदारी से बताऊँ, स्टार्टिंग दौर में मैं कभी भी, एक 14,000 फीट तक की पीक होती थी, मैं कभी सबमिट नहीं कर पाई। लेकिन हर बार मेरे दिमाग में सिर्फ इतनी बात आती कि मैंने प्लान किया है एवरेस्ट का, और एक छोटा सा 14,000 तक की पीक में सबमिट नहीं कर पा रही हूँ। आज यहाँ पर आकर मैं चाहे जितना आप सबको मोटिवेट करूँ, या फिर शायद आप सभी ने बहुत बड़े बड़े स्पीकर को सुना होगा, लेकिन मेरा मानना कि सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन होता है? खुद हमारी अंतरात्मा। जिस दिन किसी भी लक्ष्य के प्रति हमारी अंतरात्मा जाग गई, हमें कोई भी नहीं रोक सकता उस लक्ष्य को पाने से। और ये मेरी कोई किताब की बातें नहीं हैं, एक एक पल का मेरा एक्सपीरियंस है, एक एक कदम का मेरा एक्सपीरियंस है। पूरे का पूरा 30 से 35 किलो का वेट उठाना पड़ता था हमें माउंटेनिंग में, इक्विपमेंट्स पूरा उठा के उठाना पड़ता था। मैं 1 किलो नहीं उठा सकती, अपना वेट नहीं उठा सकती थी, तो मैं 30 किलो का वेट क्या उठाती। लेकिन मैंने 1 किलो 2 किलो वेट उठाना शुरू किया और खुद से डिसाइड किया कि अगर आज परिस्थिति ऐसी नहीं है कि मैं इनके बराबर चल पाऊँ, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इनसे पहले पहुँचूंगी। और आने वाले 8 महीने बाद
मैं लगातार प्रैक्टिस करती रही और 8 महीने बाद पूरा का पूरा वेट उठा के बेस कैंप से हम साथ निकलते और मुझे जैसे ही बीच में मौका मिलता था मैं फटाफट भाग के जाती थी। और पीक पे जो 14,000 की पीक होती थी मैं पहले पहुंचती, कभी 20 मिनट पहले, कभी 10 मिनट, कभी आधा घंटे, कभी 1 घंटे पहले मैं पहुंचना शुरू कर दिया था मैंने। और जो हमारा एक पॉलीथीन होता था जो हम बारिश में और स्नो में ऐसे ढकते थे अपने आप को, उसको ऐसे नीचे बिछा कर बैठ कर बिस्किट वगैरह जो भी हमारे पास रहता था वो खाते थे। और ऐसे करके मैं देखती थी कि ये लोग आ रहे हैं, जो नॉर्मल हो धीरे धीरे करके वो आ रहे हैं। क्योंकि जब वो लोग मेरे पास आते तो मुझे इतनी खुशी होती थी कि आज मैं पहले, अपने आप को मैं थपथपाती थी कि हाँ आज रुनिमा तू पहले है। उससे भी ज़्यादा मुझे खुशी तब होना शुरू हुआ जब वो सारे लोग आके मुझसे ये पूछते थे, मैडम खाते क्या हो। बेस कैंप में देखा कि आप आर्टिफिशियल पैर पहने हो हमारे साथ में और बीच में आप इतना अच्छा भाग के आए हो कि पीक पे पहले पहुंच गए। मैंने तब भी बोला था कि जो मेरा गोल है, मेरा पैशन है, जो मेरा गोल है, मेरी ज़िंदगी है, मेरी ज़रूरत और मेरा जुनून है। कोई भी गोल जब आपका जुनून बनता है, जुनून हमसे वो करवाता है जो शायद हम खुद नहीं कर सकते हैं। कोई भी गोल जब हमारी ज़रूरत बन जाता है, कोई भी गोल, सिर्फ 2 रास्ते बनते हैं कि एक ज़रूरत है तो उसको पूरा करो, दूसरा या तो छोड़ दो, जिन परिस्थितियों में है उसी में रहना सीखो। एक ये है, मैं उसमें कि मुझे ये मेरा एवरेस्ट मेरी ज़रूरत बन चुका था, मुझे किसी भी कीमत पे उसको पूरा करना था। उस टॉप पे कुछ लोगों ने मुझे तब भी पागल समझा कि पागल ही है, कुछ लोगों को शायद समझ में आया बात। फिर मैम बछेंद्री पाल ने स्टार्टिंग दौर में बोला कि रुनिमा स्पॉन्सरशिप कहाँ से आएगा। मैंने टाटा स्टील के एमडी झारखंड में जब मैं मिली हूँ फर्स्ट टाइम, तो मुझे उन्होंने इतना सिर्फ पूछा कि रुनिमा तू कर सकती है। मैंने कहा हाँ सर, मैं डेफिनेटली मैं करके दिखाऊंगी। उन्होंने पूरा का पूरा 30 से 40 लाख रुपए लगते हैं एवरेस्ट के लिए। सच पूछो तो एक साथ मैंने 30 से 40 लाख रुपए एक साथ कभी देखे ही नहीं थे। एक आम बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात थी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन तब उस समय टाटा स्टील ने मुझ पे भरोसा किया जब मैं चल भी नहीं सकती थी। तब टाटा स्टील ने मुझ पे भरोसा किया और मुझे पूरा का पूरा स्पॉन्सरशिप दिया, मुझे एवरेस्ट के लिए पूरा स्पॉन्सरशिप दिया। और एक बार नहीं, पूरे 3 बार के लिए, कि अगर एक बार में अचीव नहीं की, एक बार में अगर सबमिट नहीं किया तो 2 बार और इसको चांस दिया जाएगा। टाटा स्टील ने मुझे उस समय दिया था। फाइनली मेरे इस जर्नी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही थी, लोगों को समझा पाना। क्योंकि लोगों को ये लगता है कि विकलांगता हमारी फिजिकल बॉडी से है। लोगों को ये लगता है जो विकलांग है, हीन भावना से लोग देखना शुरू कर देते हैं। लोगों को ये लगता है कि विकलांग है वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मेरा मानना विकलांगता हमारे यहाँ से होता है। कोई भी इंसान, मैं नॉर्मल की बात कर रही हूँ, अगर वो यहाँ से विकलांग है दुनिया के कोई काम नहीं कर सकता। अगर वो यहाँ से स्ट्रांग है तो सारे काम कर सकता है। सीधी सी बात है। मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ यहाँ पे कि एक नॉर्मल इंसान इन सीढ़ियों को जस्ट 2 मिनट्स में अगर पार करता है, 2 मिनट्स में मैं भी पार करती हूँ, शायद 1.5 मिनट में, तो विकलांग कौन हुआ। विकलांग हमारा यहाँ है, ये सिर्फ विकलांग होता है, बाकी कुछ नहीं है। विकलांगता सिर्फ हमारे मन से होती है। जो मैंने आज तक कभी अपने आप को, जो मेरा ये आर्टिफिशियल पैर है, मैंने कभी माना ही नहीं कि ये मेरा आर्टिफिशियल पैर है। मैं 4 व्हीलर 2 व्हीलर सब कुछ ड्राइव करती हूँ, हमेशा सारे काम कर लेती हूँ। मेरी इस जर्नी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, जैसे मैंने बताया, कि बहुत दूसरे को समझा पाना। जब मैं फर्स्ट टाइम, मैम बछेंद्री पाल भाई साहब मुझे काठमांडू छोड़ने गए, जब मैं एवरेस्ट के लिए फाइनल निकली हूँ, शेरपा जब भी किसी पीक पे जाते एक लोकल गाइड को लेते हैं। जब शेरपा को पता चला कि ये मेरा आर्टिफिशियल पैर है, दूसरे में रॉड पड़ी हुई है, तो बोला अरे ये कैसे जाएगी, इसका तो माइनस टेम्परेचर में पैर, इसका रॉड क्रैक हो जाएगा, दूसरे पैर में भी रॉड है तो इन्फेक्शन कुछ होगा, अरे इसकी वजह से तो मेरी भी जान जाएगी। मैम बछेंद्री पाल ने उसको समझाया कि नहीं, वो प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आई है, प्रॉपर प्लानिंग से आई है, और मुझे पूरा भरोसा है कि वो एवरेस्ट सबमिट करेगी। इंडिया से हम 6 लोग थे और रॉकी एरिया तक तो सबसे आगे और सबसे अच्छा मैं चली। लेकिन जैसे ही ब्लू और ग्रीन आइस शुरू हुआ, शायद आप लोगों में से किसी ने ट्रैकिंग किया हो या फिर मैं भी बेस कैंप तक भी गया हो, जब ब्लू और ग्रीन आइस जो जितना वो सुंदर दिखता है उतना वो हार्ड होता है। मैं स्लोप पे, ऐसे स्लोप होता था, मैं पैर रखती थी, मेरा पैर स्लिप हो जाता था। जैसे ही मैं पैर रखती, मेरा पैर स्लिप हो जाता था। मेरा शेरपा था, जो मेरा गाइड था, बोला रुनिमा हटो पीछे, बाकी सबको जाने दो। मेरे ग्रुप मेंबर एक एक करके आगे बढ़े और सब ने बोला कि रुनिमा तुम आओ धीरे धीरे। मैं उस स्लोप पे रुकी नहीं, किसी तरीके से मैं उस स्लोप को पार किया मैंने।
जब आइस वॉल शुरू हुआ, ऐसे वॉल पूरा का पूरा आइस वॉल है, उस पर क्लाइंबिंग करनी थी। आप लोगों ने स्पाइस शू देखा होगा, इसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं स्पाइस शू में। क्रैम्पोन में बड़े बड़े कांटे होते हैं, ऐसे टो पे ऐसे बड़े बड़े कांटे लगे होते हैं, और बूट के नीचे भी बड़े बड़े ऐसे कांटे होते हैं जो बर्फ में इसे ग्रिप बनाता है। जब मैं मेरे राइट लेग से मैं हीट ऐसे टो से हीट करती थी आइस वॉल पे यूं, इसमें रॉड मेरा नी लेके पूरा का पूरा स्वेलिंग हो जाता था, ब्लू पड़ जाता था मेरा पैर। लेफ्ट से मैं ऐसे हीट करती थी तो मेरा प्रोस्थेटिक लेग ऐसे मूव हो जाता था। कभी कभी स्थिति ये थी कि मैं ऐसे रोप में हूँ, बीचों बीच, ना मैं नीचे आ सकती ना मैं ऊपर आ सकती हूँ, रोप में हूँ, और मैंने ऐसे हिट किया, मेरा टो हील पे आ गया, हील मेरा टो पे आ चुका था। उस चीज़ को किसी एक ने भी अगर थोड़ी सी ट्रैकिंग की होगी या माउंटेनिंग की होगी, उस चीज़ को अंदाजा। मेरा शेरपा मुझे बोलता कि रोनिमा ये क्या है, तेरा पैर तो पूरा मूव हो चुका है, तू चलेगी कैसे अभी। मैं चुप थी क्योंकि मेरा मेन लक्ष्य एवरेस्ट था। मैंने अपने पैर को रुक के पैर को धीरे से खोला और फिर सेट किया, सीधा किया और फिर हिट किया। 4 से 5 बार हिट, लगातार 5 से 6 बार हिट करने के बाद बर्फ के टुकड़े ऐसे निकल जाते थे, छोटे छोटे टुकड़े ऐसे निकल जाते थे। तब मैं ऐसे पैर रख के ऊपर जाती थी। एवरेस्ट में 4 कैंप लगते हैं। कैंप 3 तक जिसको जाना होता जाता, नहीं तो वापस आ जाता है। मेरे ग्रुप में 6 लोग थे। कैंप 3 से 2 लोग वापस आ गए। बहुत मुश्किल पल वो होता है जब आपके ग्रुप से 2-1 लोग छोड़ के जाना शुरू कर दे, इन परिस्थितियों को देखकर कि नहीं मैं सबमिट नहीं कर सकता। और मेरा ऑलरेडी आर्टिफिशियल लेग था। मैं ये सोचती कि जब मेरा प्रोस्थेटिक लेग है, ये तो नॉर्मल था, ये वापस चला गया तो मेरे साथ क्या होगा ऊपर। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ा मोटिवेटर हम खुद अपने अंतरात्मा से होते हैं। मैंने शेरपा से, मेरा शेरपा सामने खड़ा था, मैंने आगे बढ़ाया और एक एक कदम ऐसे, जस्ट जब कैंप 4 की तरफ मैं आगे बढ़ी हूँ, एक कदम मैं लेती, मैं सिर्फ इतना बोलती कि अरुणिमा जो तुम में है वो इसमें नहीं था, इसलिए ये वापस चला गया, तू सबमिट कर सकती है। हर बार ये चीज़ मैं पूरे कैंप 4 तक मैंने लगातार बोल के, मुंह से बोल के मैंने कैंप 4 क्लाइम किया। कैंप 4 पहुंची, ये कैंप 4, ये मेन समिट है, ये साउथ कोल यानी कि कैंप 4। यहाँ से यहाँ की दूरी जो है, डिस्टेंस 3500 का डिस्टेंस है ये। और उस एरिया का नाम डेथ जोन एरिया है, उसका नाम ही डेथ जोन एरिया पड़ चुका है। अगर सपोज दैट कोई ऊपर से सबमिट करके आया और मुझे रास्ता पूछना है कि भाई किधर से आए हो, तो वो बताए कि जो ब्लू कलर वाली डेड बॉडी की जैकेट वाली डेड बॉडी पड़ी है उसके बगल से निकल जाना। ऐसा सिंबल बन जाते हैं, ऐसे जगह जगह। मैं साउथ कोल से जब मैं मेन सबमिट के लिए निकली हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंबिंग रात में करते हैं। मैं और मेरा शेरपा जैसे ही आगे बढ़े थे, रात हुई, अंधेरा हुआ और हेडलाइट, एक लैंप जला के हेडलाइट होती है, उसके सहारे हम चलते हैं। हेडलाइट मेरी जिधर ही जा रही थी उधर ही डेड बॉडीज नज़र आ रही थी। अच्छे से किसी का इतना पार्ट ऐसे बर्फ में है, किसी का हाथ, किसी का पैर, करीब 200 डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। ऐसे स्किन निकल गई और जैसे कि तैसे बैठा है। जगह जगह ओवरहैंग रॉक है, उसके नीचे में ऐसे पड़ा है। मैं जब उसके बीच से निकल रही थी, इतना ही नहीं, जब मेरी आंखों के सामने कितना बड़ा माउंटेनियर क्यों ना हो, कितना बड़ा दिलेर क्यों ना हो, अपनी आंखों के सामने जब किसी को मरता देखता, उसके हौसले धरे के धरे रह जाते हैं। और बार बार दिमाग में सिर्फ इतनी बात आती है कि जिस गोल के लिए मैं जा रही हूँ उसी गोल के लिए इंसान मर रहा है। वो पल इतना मुश्किल होता डिसीजन के लेने के लिए कि वापस चला जाऊँ कि फिर मैं अपने गोल की तरफ आगे बढ़ूँ। लेकिन जब आपका ऐसी परिस्थितियाँ भी कुछ नहीं कर पाती जब आपका गोल आप पर हावी होता है। मेरे ऊपर एवरेस्ट हावी था पूरी तरीके, किसी भी कीमत पे मुझे एवरेस्ट चाहिए था। इतना ही नहीं, मैं जिस रोप में थी उसी रोप में एक बांग्लादेशी, उनका हाथ ऐसे हिल रहा था, मुंह से आ की आवाज़ आ रही थी। जब तक मैं उनके पास पहुंची हूँ, उनकी बॉडी पूरी तरीके से शांत हो चुकी थी और ऐसे रोप में वो एंकर थे और ऐसे उलट चुके थे। उनका फेस, आंखें खुली, फेस पूरा ब्लू पड़ चुका था। स्नो के छोटे छोटे पार्ट ऐसे गिर रहे थे और ऐसे हुड वगैरह में बर्फ भर रहा था, उनको ढक रहा था, धीरे धीरे करके उनको ढक रहा था। थोड़ी देर बाद वो बर्फ पूरी तरीके से ढक देता, स्नो गिर रहा था लगातार, फिर वो ढक देता। मैं जब उनके तक पहुंची तो मेरा माइंड काम करना बंद कर चुका था। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, कुछ देर तक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, आगे बढ़ूं या फिर मैं नहीं वापस चली जाऊं। मेरा शेरपा मुझसे बोल रहा कि अरुणिमा वापस चलें। मैंने कहा नहीं। 10 से 15 सेकेंड ऐसे खड़े होकर मैं सिर्फ इतना बोला, वहाँ पर जितनी डेड बॉडीज पड़ी थी मैंने सिर्फ इतना बोला, बोल के चिल्ला के, अगर इन सब में से
सभी ने एवरेस्ट सबमिट कर लिया तब तो ठीक है, अगर नहीं सबमिट किया है मैं सब के लिए एवरेस्ट सबमिट करूँगी और जिंदा वापस जाऊँगी, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं हमारी बॉडी भी उसी तरीके से काम करना शुरू करता है। मैंने अपना सेफ्टी रोक, एक सेफ्टी कैराविनर होता है, मैंने अपने सेफ्टी कैराविनर को खोला है, उसके आगे लगाया, उस डेड बॉडी के आगे लगा, उस डेड बॉडी को लांग कर मुझे जाना पड़ा है। मैं आज तक कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि जब मैं उसकी बॉडी को लांग रही थी तो क्या चल रहा था मेरे दिमाग में। मैं उस चीज़ को कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। मैंने उसकी बॉडी को लांग कर और आगे बढ़ी मैं, क्योंकि अब वो सिर्फ मेरा सपना नहीं रह गया था, जितनी डेड बॉडीज थी उनका सपना था, पूरे देश का सपना था, और इसलिए मुझे उस डेड बॉडी को लांग कर आगे बढ़ी मैं। हिलेरी स्टेप 1953 में एडमंड हिलेरी सर गए थे और रॉकी एरिया, उस एरिया का नाम हिलेरी स्टेप फर्स्ट टाइम वो क्लाइम किया था उन्होंने और जिंदा वापस आए, इसलिए उस रॉकी एरिया का नाम हिलेरी स्टेप पड़ा। जब हिलेरी स्टेप पे मैं पहुंची हूँ, मेरे शेरपा ने, जो मेरा गाइड था, मुझसे पीछे से बोला अरुणिमा वापस चलो। हिलेरी स्टेप के बाद एवरेस्ट समिट बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, जस्ट सामने दिखता है, लेकिन हमें घूम के जाना पड़ता है, ऐसे थोड़ा नीचे से घूम के जाना पड़ता, क्योंकि डायरेक्ट हम नहीं जा सकते। शेरपा मुझे बोल रहा वापस चलो, मैंने कहा क्यों? बोला अरुणिमा जिंदगी रही दोबारा ट्राई करना। मैंने कहा हुआ क्या? तो बोला अरुणिमा तुम्हारा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, दोबारा जिंदगी रही तो दोबारा ट्राई करना। मैं शॉक, ऐसे थोड़ी देर तो काम करना, परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि काम करना दिमाग बंद कर देता है। मैंने कहा नहीं, हाई एल्टीट्यूड पे गुस्सा, इरिटेशन बहुत तेजी से आता, और एक बात जब कोई बात दिमाग में आ जाती तो जल्दी खत्म नहीं होता। शेरपा मुझे, हम दोनों एक दूसरे ऐसे खड़े होकर, मेरे सामने शेरपा खड़ा, मैं यहाँ खड़ी हूँ, और ऐसे पैर को मूव कर रहे हैं, क्योंकि हम एक साथ अगर खड़े हो जाए तो बॉडी नीचे से जमना शुरू हो जाती है। बूट के अंदर उंगलियों को मूव कर रहे थे हम, और वो मुझे समझा रहा था, मैं उसे समझा रही थी। वो बोलता वापस चलो, मैं कहती नहीं सबमिट के लिए जाना है। बोलता अरुणिमा तुम्हें मरने का शौक है, तुम जाओ। इरिटेशन इतनी तेजी से आता है उस पर कि बात बात पे गुस्सा आएगा हाई एल्टीट्यूड पे। शेरपा जब मुझे बार बार बोल रहा था कि वापस चलो वापस, वो बोलता कि तुम्हें मरने का शौक है, तुम जाओ। मैम बछेंद्री पाल और मेरी माँ ने मुझे हमेशा समझाया था ये चीज़ कि अरुणिमा तुम्हारी इस जर्नी में कुछ ऐसे पल आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि तुम नहीं कर पाओगी। तुम जहाँ पर भी होना वहाँ पर खड़े होकर हल्का सा पीछे मुड़कर देखना और ये सोचना कि एक एक कदम चलकर तो यहाँ तक पहुँची है, और अपना सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाना, देखना कुछ देर बाद तो अपने टॉप पर होगी। शेरपा जब बोला कि नहीं मुझे नहीं जाना, इरिटेट हो रहा था, लास्ट में मैंने फैसला लिया कि ठीक है, आप, मुझे भी गुस्सा आया, मैंने कहा ठीक है आप जाना चाहते हो तो जाओ, नहीं जाना चाहते हो मत जाओ। मेरे पास इतना ऑक्सीजन है कि मैं अपने देश का तिरंगा लगाऊं, ये रिकॉर्ड इंडिया के नाम ला पाऊं। सिर्फ इतना बोलकर एक कदम आगे बढ़ाया था, और करीब 2 घंटे बाद मैं एवरेस्ट टॉप पे थी। वो बदल चुका था, पूरा माहौल बदल चुका था। वो शेरपा जो, ये जो हमारी 2 की टीम थी, निमा कांचा, शेरपा का नाम निमा कांचा था, है वो शेरपा और मैं, ये जो 2 की टीम थी, जबरदस्त टीम थी। वो चिल्लाता गुस्सा करता जरूर था, लेकिन हमेशा उसने मेरी हेल्प की है। और वो बात में जब मैं आगे बढ़ गई, मैंने रोप पकड़ के और आगे बढ़ गई मैं, शेरपा ने अपना जुमार फिक्स किया, जुमार एक इक्विपमेंट्स होता है, ऐसे फिक्स किया और मेरे पीछे बढ़ना शुरू किया और चिल्लाना शुरू किया, खुद तो मरेगी मुझे भी मरवाएगी, इसको कोई फर्क नहीं है। लगातार वो चिल्लाए जा रहा। मैं सिर्फ चुप थी, क्योंकि मुझे सिर्फ मेन सबमिट दिखाई दे रहा था। मैं टॉप पे पहुंची, मैंने लोगों को बदलते देखा है, चेंज होते, मैंने लोगों को पूरी तरीके से बदलते। वो शेरपा जो चिल्लाता था, बहुत गुस्सा करता था, वो एकदम नॉर्मल बिहेवियर में आ चुका था, और लोग भी, कई और लोग थे, वो उनका नॉर्मल बिहेवियर हो चुका था। शेरपा, क्योंकि वो अब वो नॉर्मल विकलांग के साथ, विकलांग अरुणिमा के साथ नहीं खड़ा था, अब एक वर्ल्ड रिकॉर्डर अरुणिमा सिन्हा के साथ खड़ा था। कोई भी काम अगर प्रॉपर प्लानिंग से की जाए, कहीं से कोई डाउट नहीं है, अगर कहीं से कोई भी डाउट नहीं है, सिर्फ एक बार में एक चीज़ को अगर फोकस की जाए तो कभी भी वो फ्लॉप नहीं हो सकता। मैंने जब से एवरेस्ट का प्लान किया था कि मुझे एवरेस्ट जाना है, तो मैंने ये सोच के रखा था कि मुझे स्वामी विवेकानंद जी की वो फोटोज़ वहाँ पे रखनी है, और वहाँ के कुछ पल समेट के अपने साथ लेके आना है। और इसलिए मैं 4-5 पेयर बैटरी, 2 डिस्पोजल कैमरा, नॉर्मल कैमरा, मैं अपने डाउन सूट में, जो मेरा जैकेट होता है हमारा, उस डाउन सूट में मैं रख के लेके गई थी। जब मैंने अपने बैटरी और कैमरा निकालना शुरू किया, शेरपा बोल रहा अरे एक कैमरा तो ठीक है, लेकिन इतने सारे कैमरे लाने की क्या ज़रूरत थी? मैंने कहा अगर एक नहीं तो दूसरा काम करेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा।
बैटरी निकाला, बोला तू सचमुच पागल है, इतनी सारी बैटरी। क्योंकि मैं कहीं से कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, मुझे उस पल को समेट के लेके आना था, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता। टाटा स्टील की वजह से फर्स्ट टाइम मुझे ये मौका मिला, शायद मुझे दोबारा कभी मौका नहीं मिलता अगर उस गोल्ड चांस को मैं खो देती, और इसलिए मैं उस पल को कभी खोना नहीं चाहती थी। शेरपा बोला कि तू सच में पागल है। मैंने जब उसको बोला अच्छा ठीक है, पागल है तो ठीक है, लेकिन फोटोज निकाल लो। शेरपा बोला अरुणिमा, तेरा ऑक्सीजन कभी भी खत्म हो सकता है, और 8,848 मीटर की हाइट पे तुझे फोटो खींचने की सूझी है। मैंने कहा नहीं प्लीज फोटोज निकाल लो। फोटो तो उसने बात तो तब बिगड़ गई थी जब मैंने उसको वीडियो बनाने को बोला। वो इतने गुस्से में था, आज मुझे भी ऐसी हंसी आती है, वो इतने गुस्से में था। उस फोटोज निकाली थी तो उसके हाथ में कैमरा था, और उसने ऐसे कैमरे को वहीं पटक दिया। वो तो अच्छा है कि टॉप पर बहुत सारे फ्लैग हैं, लोग जाते हैं फ्लैग को वहीं छोड़ देते हैं, बहुत सारे फ्लैग, तो वो कैमरा टूटा नहीं। अब ऐसे जैसे पटका कैमरे को और देर ऐसे मुड़ के जाना शुरू किया, बोला तू मर यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ। और अरुणिमा अभी भी वक्त है, तुम फटाफट नीचे भागोगी तो कैंप 4 के पास पहुँच पाओगी तो कुछ हो पाएगा, यहाँ पे तो ऑक्सीजन भी नहीं मिल सकता। जब हम सी लेवल पे होते हैं यहाँ पर, तो शायद उस अपने नेशनल फ्लैग के प्रति वो फीलिंग्स शायद कम आती है, लेकिन जब किसी कंपटीशन में या फिर ऐसे पीक पर होते हैं तो ज़बरदस्त फीलिंग्स आती है। कुछ लोग तिब्बत साइड से चढ़े थे, मैं साउथ साइड से, नेपाल साइड से मैं चढ़ी थी। मेरे मन में ये आ रहा था कि मैं अपने ऐसे कितनी ऊपर कर दूं अपने फ्लैग को कि जो सबसे ऊपर दिखे, अपने आप ऐसी फीलिंग्स आती है। देन मैंने अपना नेशनल फ्लैग लगाया, स्वामी जी की फ़ोटोज़ रखी, शेरपा को बोला कि वीडियो बनाओ। गुस्से में शेरपा बोला ऑन किया, वीडियो मूड कर दिया। शायद आप लोग भी सोचे कि वाकई में ये लड़की कुछ पागल ही है क्या। सच बताऊं, वो वीडियो मैंने बनाया क्यों? क्योंकि मेरे मन ने, मेरे दिमाग ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि जितना ऑक्सीजन मेरे पास है उतने ऑक्सीजन में मैं वापस कैंप 4 नहीं पहुंच सकती। चाहे मैं टॉप पे रहूं या मैं कैंप 4 जाने की कोशिश करूं, दोनों शर्तों में मरना तय था। तब मैंने शेरपा को बोला ये वीडियो बनाओ, और इस वीडियो के जरिए मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ। अगर मैं जिंदा नहीं जाती तो ये वीडियो मेरे इंडिया पहुँचा देना, पूरे यूथ तक चला जाएगा। और मैंने सिर्फ उस वीडियो में इतना बोला है कि आज ऐसी हालात होने के बाद मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे आ सकती हूँ, तो आपके पास तो सब कुछ है, आप क्यों नहीं? जरूरत सिर्फ होती है एक सोच, गोल और फोकस। इतना फोकस कि ऊपर वाला भी देने पे मजबूर हो जाए। 11 अप्रैल को मेरा एक्सीडेंट हुआ, 11 अप्रैल 2011 को मेरा एक्सीडेंट हुआ, और आज 21 मई 2013 पे मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ। लोगों को लगता सिर्फ 2 साल के अंदर, जबकि एम्स के डॉक्टरों का कहना है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डॉक्टरों का कहना है कि प्रोस्थेटिक लेग पर चलने और सीखने के लिए लोगों को 3 से 4 साल लग जाते हैं लोग। और मैंने, यकीन नहीं होगा आपको कि मैं उसी एम्स में सिर्फ 2 दिन में मैं चली थी। गिर के मैं चली थी, चोट लग जाती थी, लेकिन फिर भी मैंने गिर के चली थी। फिजियोथेरेपी जब करनी थी, डॉक्टर बोलते थे कि अरुणिमा आप छोड़ दो अपने आप को। ऐसे पलट जाती थी मैं बेड पे, और अपनी बड़ी सिस्टर से बोलती कि अपने मेरे पैर को मोड़ कर मेरे हाथ में दे दो, और मैं खुद मोड़ देती थी अपने पैर को। मेरे स्टिचेस, जहाँ स्टिचेस लगी होती थी वहाँ से ब्लड आ जाता था तुरंत, क्योंकि मुझे वो चीज़ पाना था इसलिए। और लोगों को लगता है कि अरुणिमा ने अपने इस एवरेस्ट मिशन को अपने पैरों से क्लाइम किया, लेकिन सच तो ये है, मेरा ये जो गोल है, ये जो मेरा मिशन था, मैंने अपने पैरों से क्लाइम ही नहीं किया। ये जो मेरा गोल था, मैंने अपने दिल से और दिमाग से किया था। क्योंकि कोई भी गोल, जब आप अपने, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दिल और दिमाग का कॉम्बिनेशन बना पाते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, और जिन्होंने बना लिया है उन्होंने इतिहास रचा है। और क्योंकि दिल और दिमाग का कॉम्बिनेशन ही कुछ अलग होता है, कंट्रोल कर पाना उनको। खैर, मैंने जो भी था पीक सबमिट किया। देन वापस शेरपा बोला, हाथ पकड़ा, बोला नीचे चल, अभी भाग फटाफट नीचे। मुझे जिस चीज़ का मुझे और मेरे शेरपा को डर था वही हुआ। जस्ट 15 से 20 कदम चले थे हम, और मेरा ऑक्सीजन पूरी तरीके से ख़त्म। और मैंने उस तड़प को महसूस किया कि एक इंसान जब बिना ऑक्सीजन के तड़पता है, ऐसे बर्फ़ में नीचे मैं गिर गई थी नीचे, और मुंह दबा के मैं सांस लेने की कोशिश करती थी कि मुझे कहीं से सांस मिल जाए, कहीं से वो ऑक्सीजन जो तड़प हो रही थी उसको मैं ख़त्म करने की कोशिश करती। शेरपा मुझे बोलता है अरुणिमा कैंप 4 के आसपास होंगे तो रेस्क्यू भी आ सकता, यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता। मैं जैसे ही खड़ी होती मैं गिर जाती, क्योंकि बॉडी में एनर्जी नहीं, ऑक्सीजन भी नहीं, तो एनर्जी और जो है वो भी लूज़ होती चली जा रही है।
मैं खड़ी होती गिर जाती। 10:55 सुबह के 10:55 पे मैंने एवरेस्ट क्लाइम किया था। 11 बजे के बाद अगर कोई अटैम्प्ट करने की कोशिश करता है उसको सुसाइड अटैम्प्ट बोलते हैं। 10:55 6 से 7 मिनट में एवरेस्ट टॉप पर थी। और जैसे जैसे दोपहर शुरू होती वेदर अपने आप खराब, विंड इतनी तेज चलती है कि अगर हम अपने आप को एंकर करके ना रखें तो विंड हमें उठा कर फेंक देगी। और बिना पासपोर्ट वीजा हम उधर चाइना जाएंगे। दूसरी गलती की तो कैंप 2, हाँ एक गलती की तो यहाँ, दूसरी गलती की तो कैंप 2। हम अपने आप को एंकर और ऐसे झुक झुक के चलना पड़ता है हमें वहाँ पर। उसी समय एक ब्रिटिश क्लाइंबर नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा था। जब वेदर खराब होता है तो समिट के लिए बहुत कम, बहुत रियर केस में कोई जाता, नहीं तो नहीं जाता है। एक ब्रिटिश क्लाइंबर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था। जस्ट थोड़ी दूर नीचे उसके पास 2 ऑक्सीजन, जनरली सबके पास 2 होता, मेरे पास भी, मैंने जाते वक्त ही दोनों लगा दिए थे। 2 था, उसने एक को लगाया और दूसरे को वहीं फेंक दिया, क्योंकि एक्स्ट्रा वेट कोई नहीं उठाना चाहता है। करोड़ों अरबों रुपए अगर आपको दे दीजिए कि लेते चले जाओ, आप नहीं ले जा सकते। एक चॉकलेट का रैपर भी भारी लगता है वहाँ पर, अपनी बॉडी का वेट तक भारी लगता है। उसने उस ऑक्सीजन को वहीं फेंका। मेरा शेरपा उतरा और उस ऑक्सीजन को लेके आया और मुझे लगाया और बोला, अरुणिमा तू बहुत लकी है, भगवान भी चाहता है कि तू जिंदा है रहे, ऊपर वाला भी तेरे साथ है। मैं चुप थी। 2 रीज़न था। एक तो वो इतने गुस्से में था कि अगर मैं नहीं मानती, अगर मैं बोलती फिर तो एक थप्पड़ खींच के मारता, बोलता चुप रहे, अब टॉप पे मेरी बात नहीं मानी थी तूने। और दूसरी ये था कि मेरे दिमाग में एक बात चल रहा था, यहाँ पर बैठे मैं किसी की भावनाओं को नहीं ठेस पहुँचाना चाहती, लेकिन सच बताऊँ मैं, न मैं लक, न भाग्य, न किस्मत, मैं इन तीनों पे भरोसा नहीं करती। क्योंकि मेरा मानना है लक भी उसी का साथ देता है जिसके अंदर जीतने का जज्बा है। अगर आपके अंदर जीतने का जज्बा है, अगर आपके अंदर जीतने का जज्बा है, परिस्थितियों को मोड़ देते हैं, परिस्थितियों को आप मोड़ देते हैं। अगर आपके, क्योंकि सीधी सी बात, हम ऊपर वाले का ही एक कण है। कहते हैं कि जब कोई चीज़ आप बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात लग जाती है मिलाने में। आई थिंक किसी मूवी का भी ये है, लग जाती है। और ये चीज़ उस मूवी में तो बाद में आया होगा, लेकिन ये चीज़ मैंने महसूस किया है। मैंने महसूस किया उस चीज़ों को। फर्स्ट मैं हॉस्पिटल के बेड पे थी, प्लानिंग किया मैंने, एवरेस्ट जाना है, अपने आप रास्ते बनते चले गए। देन टाटा स्टील का हाथ मिला, मैं मछिंद्री पाल का हाथ मिला, देन उस शेरपा का हाथ मिला, एवरेस्ट सबमिट हुआ, ऑक्सीजन मिला। क्योंकि सोच किया, जिंदगी रिस्क लिया मैंने, और इसलिए जो भी था, लक भाग्य किस्मत, मुझे ऑक्सीजन मिला। मैं फटाफट नीचे भागना शुरू की। अभी भी चैलेंज मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। मैं खुश थी कि आज मैंने अपने देश के लिए कुछ किया है, लेकिन कोई और था ही। डेड बॉडीज ऐसे होती हैं, किससे शेयर करें हम। चारों तरफ सिर्फ वाइट दिखता है, वाइट चादर पे लोगों को ऐसे ब्लड की उल्टियाँ होती हैं, जगह जगह ऐसे पैच दिखता है, रेड 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 पैच दिखता है। मैं उनके बीच से निकल रही थी और कुछ लोग, हम मेरा जो एक्सपीडिशन था वो इको एक्सपीडिशन था। ह्यूमन वेस्टेज तक हम एक पाउच में करते थे और उसको फिर पैक करके अपने बैग में, एक साइड में ऐसे ह्यूमन वेस्टेज, दूसरे साइड में हमारा खाने का जो भी रहता था, खाने का रहता था। देन ऑक्सीजन, ऊपर की फ्लैप में, ऊपर की जिप में हमारे जो भगवान, जो भी फोटोज़ हम जिसको भी मानते हैं, हम उस फोटोज़ को ऊपर में रखते थे। नीचे लेके आ रहे हैं हम उसी तरीके से। मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं कैरी कर सकती थी, लेकिन जो वहाँ पे लोग फ्लैग लेके जाते हैं, छोड़ देते हैं, मैंने उस फ्लैग को ही रख लिया था कि भाई गार्बेज ना हो, उठा के मैं लेके आ रही थी। अभी भी चैलेंज मेरा, जब जाते हैं तो टो से, आते तो हील मार मार के, मैं हील लगा लगा के आ रही थी। हम माउंटेनियर्स को सिखाया जाता कि जितनी कोशिश हो सके मदद करो दूसरे माउंटेनियर्स को। मैं सिर्फ इतना कर सकती थी। लोग जो बैठ जाते, कुछ लोग गिव अप कर देते हैं, जो बैठ जाते मैं उनको ऐसे हिला के बोलती कि चलो नीचे। जो जिंदा रहते उनका तो रिएक्शन होता, जो जिंदा ही नहीं उनका कोई रिएक्शन नहीं होता। मेरे सामने बैठे हुए एक ऐसे पानी का बोतल, एक हाथ में थर्मस, दूसरे हाथ में उसका ढक्कन, और ऐसे पता नहीं पानी वो पी पाए कि नहीं पी पाए, उनका ये सब पूरा बर्फ जम चुका था मेरी आंखों के सामने। जब मैंने उनके ऐसे कंधे पर ऐसे हिलाया तो लुढ़कते हुए नीचे गिर गए। मैं पीछे हटी और फिर मैं आगे फटाफट भागना शुरू किया। ये साउथ कोल, अभी भाग रही थी मैं, साउथ कोल अभी दूर है, यानी कि कैंप 4 अभी दूर है। खुश थी, एकाएक मेरा पूरा का पूरा प्रोस्थेटिक लेग निकल गया, मेरा आर्टिफिशियल पैर पूरा का पूरा स्लिप हो गया। मेरे सामने मेरा शेरपा है, मैं उसको भी नहीं बोल पा रही हूँ कि मेरा पैर निकल गया है, क्योंकि नेपाल तो तब भी ठीक है, आउट ऑफ कंट्री के एकदम प्रैक्टिकल, माउंटेनिंग में एकदम प्रैक्टिकल। वो लास्ट मोमेंट तक शेरपा गाइड आपको बोलेगा कि चलो, अगर आप नहीं चल सकते
तो आपको वहीं छोड़ देगा, खुद भाग के चला जाएगा। शेरपा की भी कोई गलती नहीं होती, या तो आपकी वजह से वो भी अपनी जान दे, इसलिए आपको चलना तो पड़ेगा ही किसी भी कीमत पे। मेरे शेरपा ने, जब मैं उसको बोल नहीं पा रही थी, और फ्रॉस्ट बाइट के 3 स्टेज होते हैं, रेड, ब्लू, ब्लैक। मेरा ये हाथ रेड हो चुका था, नाखून और मांस ऐसे फट जाते हैं, जगह जगह से क्रैक हो जाते, स्किन क्रैक हो जाती है, ये सब फट गया था और यहाँ से क्रैक हो चुका था। ये मैं ऐसे मुट्ठी नहीं बांध सकती हूँ, मुट्ठी नहीं बांध सकती तो मैं रोप कैसे पकड़ूँ, और क्योंकि मैं बार बार गिर रही थी, इस वजह से वो फ्रॉस्ट बाइट के स्टेज, फर्स्ट स्टेज में थी मैं। मेरे आंखों से आंसू आता, यहाँ तक आता, ऐसे मास्क था, यहाँ जम जाता था। वो एग्जाम्पल गलत होगा कि सही होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बताऊँ, जब मेरे मुंह में ऐसे लार आता था और जब मैंने इसे नीचे थूकती थी तो कुट से आवाज़ आती थी, यहीं जम जाता था। एवरेज पे -60 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता कभी कभी। और वो मेरा जो वॉच था वो हाई लिख के कुछ बता ही नहीं पाता था, कुछ नहीं बता पाता था। मेरा शेरपा, मेरे आंखों से आंसू आना शुरू हो गया और मैं चिल्ला चिल्ला कर बोलना शुरू किया, क्या है? एक तो मेरे दिमाग में माउंटेन, फिर आज एवरेस्ट सबमिट भी कर लिया, तो आप क्या चाहते हैं मैं जिंदा वापस ना जाऊं? आपके पास जितनी ताकत है आप लगा लो, मेरे पास जितनी ताकत है मैं भी लगाऊंगी, लेकिन जिंदा वापस जाऊंगी। अपने इस हाथ को मैंने दूसरे हाथ से पकड़ के ऐसे मोड़ दिया, और फिर ये स्किन फट गई थी जब मैंने मोड़ा, फिर रोप को पकड़ा दूसरे हाथ से, आर्टिफिशियल पैर को, और पैर को घसीट घसीट के चलना शुरू किया, क्योंकि यही रास्ता था मेरे पास। दूसरा ये था, ये तो मैं छोड़ देती, आपके सामने एक इतिहास होती, या फिर शायद आप जान भी नहीं पाते, और उस बर्फ, स्नो मेरे ऊपर गिरता और मैं एक हमेशा के लिए ढक जाती वहाँ के लिए। लेकिन मैंने पैर को घसीट घसीट के चलना शुरू किया। थोड़ी दूर रॉकी एरिया, जहाँ विंड नहीं था, कम था विंड, मैंने अपने पैर को खोला है। मेरा जो थाई है जब पूरी तरीके से गीला हो जाता, मैं एक सिलिकॉन जेल पहनती हूँ, जब वो गीला हो जाता तो स्किन को छोड़ देता, फिर स्लिप हो जाता है। तो जब मैं बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग करती हूँ या फिर माउंटेनिंग करती हूँ तो स्किन मेरी कट जाती है चारों तरफ से और ब्लड आने लगता है, तो गीला हो जाता है और इसलिए वो स्लिप हो जाता है। जब शेरपा मेरे सामने खड़ा था और बोला, अरुणिमा तेरे पैर में तो पूरा घाव हो चुका, चलेगी कैसे? मैंने बोला कि क्योंकि अब एवरेस्ट सबमिट हो चुका था तो अपने आप वो पेन पता ही नहीं चल रहा था। मैंने कहा नहीं, अब तो सबमिट हो चुका है और उस दर्द से कुछ नहीं होता। उसने कहा, अरुणिमा जाएंगे तो जिंदा दोनों साथ में जाएंगे, छोड़ के तुझे किसी भी कीमत पे नहीं जाऊंगा। क्योंकि मुझे तो यकीन नहीं था कि तू एवरेस्ट सबमिट कर पाएगी। मैंने तो मैम बछेंद्री पाल से काठमांडू में ही बोल दिया था, लेकिन मुझे लग रहा था कैंप 1, कैंप 2 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हिलेरी स्टेप तक तू बोल देगी तो एवरेस्ट सबमिट नहीं कर सकती। लेकिन तूने एवरेस्ट सबमिट किया, इसलिए मैं तेरे साथ ही चलूँगा, चाहे तू कितना भी लेट चले, कितना भी धीरे तू चले, लेकिन चलूँगा साथ में, मरेंगे तो दोनों साथ में मरेंगे। मैंने कहा ऐसी नौबत नहीं, क्योंकि अब जो अचीव कर लिया था तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया था मेरा और दर्द पता ही नहीं चल रहा था। फाइनली वापस कैंप 4 मैं रात को 9:30 बजे पहुंची थी। जो नॉर्मल लोग होते हैं 16 से 17 घंटे लेते हैं कैंप 4 से सबमिट से वापस कैंप 4 आने में 16 से 17 घंटे लेते हैं। मुझे टोटल 28 घंटे लगे थे और उस 28 घंटे में मेरे पास सिर्फ 1 लीटर पानी और 1 चॉकलेट्स और कुछ नहीं। सर्वाइव, बर्फ का जो स्नो का पार्ट रहता था ऊपर से हटा के फिर मुंह में ऐसे रखते थे, जो गला हमारा सूखता था उसको सर्वाइव करने के लिए। वापस जब मैं कैंप 4 पहुंची हूँ, हमारे ग्रुप के लीडर थे, उनका टेंट के अंदर थे, क्योंकि मुझसे जस्ट 2 घंटे पहले उन्होंने सबमिट किया था और मेरे से 2 घंटे पहले उन्होंने कैंप 4 वो पहुंचे थे। जब टेंट का जिप खोला, उनका सबसे पहला सवाल यही था कि अरुणिमा इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत थी? मैंने एक लाइन में बोला था, जिसने आज तक अपनी जिंदगी में रिस्क नहीं लिया, सबसे बड़ा रिस्क तो यही है, नो पेन नो गेन। वो खैर वो एवरेस्ट सबमिट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, जिसके पास भी वो जुनून और करेज होगा निश्चित तौर पे वो एवरेस्ट सबमिट करेगा। लेकिन बात करें आम इंसान की, हम सब की, क्योंकि हर इंसान का अपना एक अलग एवरेस्ट होता है। जब आपके जीवन में प्रॉब्लम्स और जिम्मेदारियां चरम सीमा पे आ जाएं, आपके मन से, आपके दिल से आह निकलना शुरू हो जाए कि आह अब नहीं बर्दाश्त कर सकता, तब आप उसी दिन समझ लीजिए कि ऊपर वाला आपके लिए सुनहरा सवेरा लिख चुका है। बस एक काली रात की देर होती, जो उस काली रात को पार कर जाता है, उस सुनहरे सवेरे में पहुंच जाता है। कोई भी लोगों को, बहुत सारे लोग बोलते हैं अरुणिमा तू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एक्स्ट्रा विल पावर है, लेकिन सच बताऊं ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब एक जैसे होते हैं, फर्क सिर्फ इतना होता, ऊपर वाला हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी डालता है। फर्क सिर्फ उतना, जिस दिन हम अपने उस
अंदर की क्वालिटी को पहचान कर इस भीड़ से एक कदम ऐसे आगे उठाकर बढ़ा दिया, लोग हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देते हैं। अलग से करने की कुछ भी, पानी का जहाज, नो डाउट आर्ट यहाँ पर सब बहुत अचीव, मेरे से सब बहुत बड़े हैं, लेकिन फिर भी जो मुझे लगता है हम सब एक अचीवर हैं, एक इसलिए यहाँ पर हैं। लेकिन क्या सिर्फ इतना? पानी का जहाज सबसे ज़्यादा सेफ कहाँ होता है? जब वो समुद्र के किनारे खड़ा होता है और कुछ नहीं करता, जब वो खड़ा रहता है तब वो सबसे ज़्यादा सेफ होता है। लेकिन क्या उसका काम सिर्फ इतना है? उसका ये नहीं काम, उसका ये काम है कि अपने नए टारगेट को ले और देन फिर अपने गोल के ऊपर निकल जाए। हर बार एक नया टारगेट, एक अचीव करे देन दूसरा। उसी तरीके से मैंने भी अपने छोटे छोटे गोल्स अभी लिए हैं। वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट के 7 हाईएस्ट पीक, एशिया एवरेस्ट, किलिमंजारो अफ्रीका, यूरोप एल्ब्रुस और ऑस्ट्रेलिया के जास्को, ये 4 पीक तो मेरे हो चुके हैं। अंटार्कटिका, थैंक यू, अंटार्कटिका, विंसन, साउथ अमेरिका, अकांकागुआ और नॉर्थ अमेरिका डेनाली, ये 3 पीक मेरे बाकी हैं। जस्ट अगले महीने 8 तारीख को मैं अकांकागुआ साउथ अमेरिका जा रही हूँ। बस आप सबकी गुड विशेस चाहिए कि मैं एक एक करके क्लाइम कर पाऊँ, अपने देश का तिरंगा लगा पाऊँ हर पीक पर। और इन सबको पाने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर की कॉन्फिडेंस, सबसे ज़्यादा हमारा अंदर का कॉन्फिडेंस जो होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे छाता होता है, छाता अम्ब्रेला, बारिश जब होती है तो हम उस छाते को ऐसे लेते हैं और बारिश में आराम से उतर जाते हैं, क्योंकि हमें भरोसा होता, कॉन्फिडेंस होता उस छाते पर कि ये छाता हमें भीगने नहीं देगा। उसी तरीके से हमारा कॉन्फिडेंस होता है कि सफलता की पूरी गारंटी तो नहीं दे देता, लेकिन उस सफलता में जो थपेड़े आते हैं उस थपेड़ों से लड़ने की ताकत जरूर दे देता है, वो हमारा कॉन्फिडेंस होता है। विश्वास हमें अपने इंस्ट्रक्टर, अपनी ट्रेनिंग, अपनी इक्विपमेंट्स जो हमें सिखाया गया है अपने ऊपर, और सबसे ज़्यादा ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, जीत हमेशा आपकी होती है। सिर्फ ईमानदारी से एक कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत होती है। मैं भी नास्तिक नहीं हूँ, मैं भी ऊपर वाले को पूरी तरीके से मानती हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका था। रेलवे ट्रैक पे मैं 7 घंटे लगातार पड़ी थी, और जब महिला आयोग ने रिपोर्ट मांगी थी रेलवे से तो 49 ट्रेन अप डाउन हुई थी। 49 ट्रेन 7 घंटे मैं लगातार पटरी पे पड़ी रही। इतना भीषण एक्सीडेंट होने के बाद भी अगर ऊपर वाले ने मुझे बचाया था तो सीधी सी बात है भाई कि कुछ ना कुछ इतिहास रचने के लिए बचाया था, क्योंकि 2011 तक मैं एकदम नॉर्मल थी। 2011 तक मैं एकदम नॉर्मल थी। शायद उनका यही प्लानिंग था कि जाओ 2011 में तेरा पैर काटूंगा और 13 में तुझसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवाऊंगा। यही प्लानिंग थी उसकी, यही, कुछ अलग से और कुछ भी नहीं। और फर्स्ट एवरेस्ट टाटा स्टील स्पॉन्सर, देन किलिमंजारो, बीवीजी भारत विकास ग्रुप इंडिया लिमिटेड, जिसकी मैं ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ, और 3 पीकों का आपने ही स्पॉन्सरशिप दिया जो मैन पावर का काम करती है। और कई आपके यहाँ 108 एम्बुलेंस का भी है, फ्री सेवा भी देते हैं आप। बस मैं यही चाहूँगी जिस तरीके से टाटा स्टील और बीवीजी आगे बढ़कर मुझ जैसे मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे को सपोर्ट किया, मैं बस यही कहना चाहूँगी इस हॉल में जितने लोग बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि और अरुणिमा नहीं है, हैं, बस एक प्लेटफॉर्म मिलने की देरी है। जिस दिन उनको एक प्लेटफॉर्म मिला वो अपने आप को प्रूव कर देंगे कि वो क्या है। बस आप सबका यही सपोर्ट चाहिए कि उनको भी वो मौका मिले, उनको भी वो सपोर्ट मिले जिससे वो अपने आप को प्रूव कर सकते और ऐसा प्लेटफॉर्म उनको मिल पाए। और मैं कोई राइटर नहीं थी, लेकिन मेरी एक बुक है बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, जिसे लास्ट ईयर पीएम सर ने लॉन्च किया है। उसकी मराठी वर्जन माननीय सीएम सर, महाराष्ट्र सीएम सर ने 2 जून को लॉन्च किया। हिंदी वर्जन अभी सर, टाटा सर और हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी दोनों जन ने लॉन्च किया है अभी 27 नवंबर को, जस्ट कुछ दिन पहले, अभी 2-4-5 दिन पहले की बात है। ये भी मेरे लिए एक्चुअली टाटा सर मेरे लाइफ का 8वां समिट थे। मैं अपने दिल से इस चीज़ को
सच में जब आपकी बात आती है तो मेरे वर्ड नहीं निकलता, मैं बोल ही नहीं सकती, मैं क्या बोलूं। दिल से रिस्पेक्ट, कुछ लोग ऐसे जिसके लिए दिल से रिस्पेक्ट आता है। इवन जब आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अरुणिमा मैं आऊँगा तुम्हारे स्पोर्ट्स डिसेबल्स बच्चों के लिए है, और उस दिन बैडमिंटन में करीब 4-5 गोल्ड और ब्रॉन्ज सिल्वर कुछ बच्चे एकेडमी से मेरे लेके आए थे। आपके हाथों वो फेलिसिटेट होके इतना खुश हैं वो, कि इतना वो खुश हैं कि अब बोल रहे हैं कि अभी और खेलूंगा और ज़बरदस्त खेलूंगा, इतना खुश हैं वो। तो वही खुशी मुझ में होती है। सर जब वहाँ पे जैसे ही उतरे और सर ने ऐसे हाथ सीधा बोला सर ने कि अरुणिमा मैंने अपने प्रॉमिस को पूरा किया। मैंने वो कमिटमेंट आपसे सीखा है, किसी चीज़ को कमिट करके और पूरा करना मैंने आपसे सीखा है। और मैं यही कहूँगी कि आप सब उनकी कदमों को फॉलो करें, कि सिर्फ कमिटमेंट के छोड़ देना वो नहीं, कमिटमेंट करके पूरा करना ये बहुत बड़ी बात होती है। और इसलिए मैंने भी आपसे सीखा है और हमेशा यही चाहूँगी कि सर आपकी दया दृष्टि, हमेशा आपका आशीर्वाद मेरे पे बना रहे, आपका सहयोग बस मेरे साथ रहे, कि मैं अपनी जैसी और अरुणिमा उस स्पोर्ट्स एकेडमी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मैंने क्योंकि वहाँ से निकल कर एवरेस्ट जाना मेरे लिए एक एवरेस्ट था, लोगों का माइंड ब्रेक तोड़ पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने उस माइंड ब्रेक को तोड़ा है और तोड़ के फिर मैं वहाँ तक पहुँची हूँ, क्योंकि आप सबका सहयोग की वजह से। और अगर मैं एक एग्जांपल और दूँ, टाटा स्टील सर आप भी महाराष्ट्र से, बीवीजी महाराष्ट्र, मैं ब्रांड एम्बेसडर, इवन रत्नानिधि ट्रस्ट महाराष्ट्र, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे महाराष्ट्र से हमेशा सपोर्ट मिला है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मुझे बस मेरा एक ही सपना है सर। आज भी मेरा जो अपना घर है, मैं रेंट पे हूँ, मेरे अपना खुद का घर, लेकिन मुझे इतने पैसे मिलते हैं, मैं अगर मैं चाहूँ तो मैं एक बंगला और गाड़ी आराम से ले सकती हूँ। गाड़ी अभी आपने अरुणिमा फाउंडेशन के नाम से आपने गाड़ी अभी दिया है, जस्ट 27 नवंबर को, बीवीजी फाउंडर। मैं चाहूँ तो अपना घर बना सकती हूँ, लेकिन मेरा सिर्फ एक सपना है कि मैं अपनी जैसी और अरुणिमा देश को दे पाऊँ। बस आपका सहयोग चाहिए। और जब आज़ादी के पहले मदन मोहन मालवीय जी ने 1-1 रुपए मांग कर इतना बड़ा हिंदू विश्वविद्यालय बना दिया, तो क्या आज 21वीं सदी में जब हमारा देश आज़ाद है और आप जैसे सहयोगी हैं, आप सबके जैसे, तो क्या अरुणिमा 21वीं सदी में इतना बड़ा स्पोर्ट्स एकेडमी नहीं बना सकती? बना सकती है, बस आपके सहयोग की और गोल फोकस, सिर्फ फोकस, निश्चित तौर पर एकेडमी बनेगी। और तभी मेरा सपना पूरा होगा, जब मैं अपनी जैसी और अरुणिमा को ऐसे अपने बराबर लाके खड़ा कर पाऊँ, तभी उसी दिन मुझे सुकून होगा। और इसी कमिटमेंट के साथ में आज आप सबसे यही प्रॉमिस चाहूँगी कि आप सब मेरा सपोर्ट करें। मेरी 4 लाइन की एक फेवरेट है, मेरी पंक्ति है, जो मैं आपको आपके सामने कहूँगी। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। थैंक यू सो मच। मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। इसलिए जैसे मैं ऐसी हालात में होने के बाद भी मैं आज यहाँ हूँ। Yes.